ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਟਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਨੀਤ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਲਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਟਅਪ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਨਯੋਂਗ ਟੈਕ ਵੈਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੀਕੌਨ ਵੈਲੀ ਆਫ ਕੋਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲਰ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਆ ਉਹ ਫਰੈਂਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਿੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਟਾਈ ਅਪਸ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਹਰ ਬੱਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਇਜ਼ ਏ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਫਿਊਚਰ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੀ ਬਣਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਣਾਵੇ। ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਿਆਓ ਦੇ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਸਪੋਰਟ। ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ First of all, this is my first event. I just recently arrived. So as you know, I'm a new Deputy High Commissioner here in Chandigarh. So just to say I'm really excited to be here. So I think it's been a really great opportunity to learn more about investment opportunities and especially to see such a young talent. It's really great to see so many innovative ideas and opportunities that are in this area. So it's been great. Of course. Yes, so this is my first time and I have to say you have a beautiful city. It's very green, very well organized and people are so incredibly warm and friendly. So I see, obviously it's very early days, but I look forward to exploring more Chandigarh, Punjab and the northwest of India more broadly. As you know, 2025 has been an incredible year. In terms of partnership between the UK and India, it's been a very successful year. We've had the visit of the Prime Minister Starmer and obviously coming here and meeting Modi. So we've seen many businesses coming together and the signing of the Comprehensive Economic Trade Agreement. So I see there is a very positive future for the partnership between the two countries. So all positive things going forward. बिल्कुल फुलफिल हुआ। ये मकसद पहले मैं आपको बताऊं, मकसद टाई का सिर्फ एक ही रहता है हमेशा से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। तो हम जो भी प्रोग्राम करते हैं जो भी इवेंट करते हैं उसका जो बोलते हैं तथ्य ये होता है कि कोई ना कोई नया एंटरप्रेन्योर बने, कोई ना कोई एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर फंडिंग लेके जाए, कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर नया नेटवर्क बना सके, अपने लिए मेंटर ला पाए और एंटरप्रेन्योर बड़े स्केल है तो अपने लिए मेंटी ला पाए। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने टाई यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है हमारा जिसको हम स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में चलाते हैं। उसके अंडर जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर अपने आप को रजिस्टर करती हैं उन सारी स्टार्टअप को हम कंपटीशन में लेके आते हैं। बच्चे अपनी पिचेस भेजते हैं, अपने आइडियाज़ भेजते हैं जिसको टाई के मेंबर्स स्क्रूटनाइज करते हैं, आइडियाज़ को वैलिडेट करते हैं, फिर पिचिंग होती है, इन्वेस्टर्स के सामने पिच किया जाता है, उसमें जो त्रुटियां ठीक कराई जाती हैं। 73 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें से कि 12 टीम्स हमने फिनाले में लेके गए। उन सबको हमने
पैसे देने की मतलब प्राइज़ देने की बात करी, ये कोई सीड मनी नहीं है, ये प्राइज़ है उनके अच्छे एफर्ट्स के लिए। तो हाईएस्ट प्राइज़ हमने 1.25 लाख रुपए दिया है, नंबर 2 को हमने लाख रुपया दिया है, नंबर 3 को 75,000 दिए हैं, अगली 3 टीम को 50,000 और बाकी 6 टीमों को 25-25 हज़ार। इसी तरह हमारा एक टाई विमेन करके, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर टाई बहुत काम करती है, अक्रॉस द ग्लोब काम करती है। जब तक विमेन बराबर नहीं होंगी मेन के, तब तक हम कहीं पे भी बराबरी पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारा मोटिव ऐसा रहता है कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को हम बहुत बढ़ावा दें। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि टाई चंडीगढ़ के अंदर 80 विमेन एंटरप्रेन्योर टाई चंडीगढ़ की ऑलरेडी मेंबर हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतना बड़ा नंबर नहीं है, और टाई चंडीगढ़ अपने आप में 450 सशक्त एंटरप्रेन्योर्स की ऑर्गेनाइजेशन है चंडीगढ़ में, और पूरे वर्ल्ड वाइड 22,000 से ऊपर मेंबर हैं टाई के अंदर, और 67 चैप्टर हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, 20 कंट्रीज़ में फैली हुई है टाई में। टाई के इंडिया में 27 चैप्टर हैं। तो ये टाई विमेन का प्रोग्राम जो होता है उसके अंदर इस बार 52 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। एक टाई चंडीगढ़ बेसिकली 4 स्टेट को कैटर करता है, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, JNK और चंडीगढ़। यहीं से ही स्टार्टअप अप्लाई कर सकती हैं, यहीं से सब स्टार्टअप ने अप्लाई किया। 52 टीम्स ने अप्लाई किया, उसमें से वही 12 टीम जो हमने निकाली, जिसमें फर्स्ट टीम को द्वारा से 1,25,000, सेकेंड टीम को 1 लाख रुपया, थर्ड टीम को 75,000, अगली 3 टीम को 50 और लास्ट की 6 टीम को 25,000 रुपये हमने दिए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि लोग फिलंथ्रोपी में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। एक रणवीर सिंह जी हैं, US में रहते हैं, पंजाब के हैं, उन्होंने 15 लाख रुपए टाई यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के अंदर देने की बात करी। उन्होंने एक शर्त रखी कि हमें पैसा सिर्फ पंजाब की स्टार्टअप्स को ही देंगे। हमने अपने आप को लकी मानते हैं, हमारी तरफ से टाई यूनिवर्सिटी में लीड है हरित मोहन जी, पास्ट प्रेसिडेंट, वो रणवीर जी को यहाँ लेके आए, मेरी उनसे बातचीत हुई और उन्हें 15 लाख रुपए स्टार्टअप्स में बांटने के लिए दिए। तो ये जो पैसा आज हमने बांटा है, इसमें स्टार्टअप पंजाब, रणवीर जी और टाई चंडीगढ़ का इकट्ठा पैसा हमने लोगों के बीच में बांटा है। इस पैसा बांटने का ये मतलब नहीं है कि हम पैसा बांट के उनको बहुत कुछ कर पाएंगे, पर ये प्रोत्साहन होता है एक लेवल के शुरुआत के काम को। आपको ये जानकर खुशी होगी, जो नंबर 1 टीम टाई विमेन की है उसको स्टार्टअप पंजाब ने भी सीड फंडिंग दी थी। अब वो पहला राउंड क्लोज कर रहे हैं 8 करोड़ रुपए का। तो कंपनी अभी मार्केट में आने वाली है, ऑलरेडी वैल्यूएशन में आ चुकी है, ऑलरेडी धंधा कर रही है, जिसमें पैसे भी बन रहे हैं। तो आप देखिए, ये सब करना और साथ में इंडस्ट्री मिनिस्टर का होना, ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर का होना, ये दर्शाता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा आइडिया वैलिडेट हो रहा है और टाई चंडीगढ़ जिस दिशा में काम करनी चाहिए उसी दिशा में काम कर रही है। हम ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। अमनदीप गरेवाल जी हैं यहाँ पे, डिप्टी हेड ऑफ मिशन। जब मैंने एज ए प्रेसिडेंट टेक ओवर किया तो मेरी पहली मीटिंग जो हुई है उन्हीं के साथ हुई है। मैंने बोला कि ये रिलेशनशिप हमें आगे लेके जाना है, हमें हाई कमिश्नर भी यहाँ पे चाहिए। उस टाइम पे डिप्टी हाई कमिश्नर की पोस्ट खाली थी, तो अभी ये 8 दिसंबर को ही डिप्टी ब्रिटिश हाई कमीशन यहाँ पे आई हैं। जैसे ही मेरे को पता लगा, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, अमनदीप जी हमें तो मैम चाहिए। आप देखिए, उन्होंने उसी दिन बोला, पुनीत जी मैं बात करता हूँ। शाम को 8 बजे उन्होंने मेरे को अप्रूवल दे दिया कि हम उनको अनाउंस कर सकते हैं। तो ब्रिटिश भी चाहता है, हाई कमीशन हमारे साथ रेगुलर काम करती है, हम डेलीगेशन लेके जाते हैं। लंदन टेक वीक में हमारी तरफ से 25 लोग टाई चंडीगढ़ की तरफ से लंदन जाके आए, मैं भी उस डेलीगेशन का पार्ट था। तो ये रिलेशन बड़ा कॉर्डियल है, और मैम के आने से ये साबित होता है कि टाई चंडीगढ़ उनकी प्रायोरिटी में। और ये पहली पब्लिक गैदरिंग है जो उन्होंने अटेंड करी, एंड वी आर वेरी ऑनर्ड